الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ غم دنیا سے بہتر آخرت ہے، غم دنیا سے بہتر آخرت ہے، ہر ایک منزل سے بڑھ کر آخرت ہے، خدائے پاک سے ڈر آخرت ہے، بدی کے کام مت کر آخرت ہے، خدائے پاک سے ڈر آخرت ہے، بدی کے کام مت کر آخرت ہے، کہ حق ہے روز محشر آخرت ہے، اور نہ اترا اس قدر دنیا کے اوپر، پڑا رہ جائے گا سب مال و منظر، نمازیں وقت پر اپنے ادا کر، خدا پوچھے گا تجھ سے روز محشر، دکھاؤ اپنا دفتر آخرت ہے، غم دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ جہاں میں دل لگا کر کیا ملے گا، اسے اپنا بنا کر کیا ملے گا، جہاں میں دل لگا کر کیا ملے گا، اسے اپنا بنا کر کیا ملے گا، یہاں کا گھر سجا کر کیا ملے گا، فقط دنیا کما کر کیا ملے گا، دکھا نیکی کما کر آخرت ہے، غم دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ یہ منصب اور عہدہ کب تلک ہے، یہ منصب اور عہدہ کب تلک ہے، یہ تیرا روب و رتبہ کب تلک ہے، یہ گاڑی اور بنگلہ کب تلک ہے، بتا تیری یہ دنیا کب تلک ہے، فنا ہے ہر کسی پر آخرت ہے، کل من علیہا فان، فنا ہے ہر کسی پر آخرت ہے، غم دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ تو اپنے آپ میں اتنا مگن ہے، تیرا مطلوب بس پیسہ ہے دھن ہے، تو اپنے آپ میں اتنا مگن ہے، تیرا مطلوب بس پیسہ ہے دھن ہے، تیری اپنی الگ ہی انجمن ہے، تیرا ملبوس بالآخر کفن ہے، تو زندہ ہوگا مر کر آخرت ہے، غم دنیا سے بہتر آخرت ہے، اور رضائے رب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، مزہ دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ مال و درہم و زر کچھ نہیں ہے، بجز اللہ اکبر کچھ نہیں ہے، یقین کر تو بھی ازہر آخرت ہے، غم دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ حضرات، معزز سامعین، محترم علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز مفتیان اعظام، مقررین اور خطباء اعظام، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں، اپنی گزارشات رکھوں گا۔ یہاں ایک ہیلمٹ والا تھا نا جی، کہاں گیا؟ او چلا گیا؟ ارے یار، اس کو تو میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا، اس کو بلا کے لاؤ بھائی، کام نہیں ہوگا۔ حضرات، یہ مدرسہ جو جامعہ بریرہ للبنات کے نام سے آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں قائم ہوا ہے، جس کی آج علماء کرام کے مبارک ہاتھوں بنیاد رکھی گئی ہے، یہ مدرسہ آپ کی بستی، آپ کے محلے کا مدرسہ، آپ کا اپنا مدرسہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ جب ہم اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایک ستارہ کافی تھا، دوسرے ستارے کی کیا ضرورت۔ کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں۔ یہ جگمگاتے ہوئے ستاروں بھرا آسمان ہمیں اچھا لگتا ہے،
खूबसूरत मालूम होता है। जब हम किसी चौक चौराहे पर जाते हैं, एक धुंधली सी लाइट लगी होती है तो हमें शिकायत होती है अपने वार्ड मेंबर से, मुखिया से कि एक ही लाइट क्यों लगा रखी है, उजाला साफ नहीं नजर आ रहा है, रोशनी सही तरीके से नहीं हो रही है, एक और लाइट लगानी चाहिए थी, एक इससे बड़ी लाइट लगानी चाहिए थी जिससे पूरा चौक पूरा चौराहा रोशन हो जाता और हमें यहाँ बैठने में अच्छा लगता। जिस तरह हमें ये कतार अंदर कतार कुमकुमे और लाइटें और ट्यूबलाइट्स अच्छी लग रही है, एक बल्ब के पास दूसरा बल्ब अच्छा लग रहा है, एक चिराग के पास दूसरा चिराग अच्छा लगता है, जिस तरह रात के अंधेरे में लाइन दर लाइन कुमकुमे हमें अच्छे लगते हैं, जिस तरह रात की तारीकी में आसमान पर चमकते हुए बेशुमार जिनका कोई शुमार नहीं सितारे हमें भरे मालूम होते हैं, ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि अल्लाह की इस धरती पर, कायनात की इस जमीन पर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर ये जितने मदारिस इस्लामिया खुले हुए हैं, ये जितने मकातिब दीनिया खुले हुए हैं, वो लड़कियों की तालीम के लिए हो या लड़कों की तालीम के लिए हो, बच्चों की तालीम के लिए हो या बच्चियों की तालीम के लिए हो, जामिया बलीगा लिल बनात के नाम से हो, आयशा सिद्दीका लिल बनात के नाम से हो, मदरसा फातिमतुल ज़हरा लिल बनात के नाम से हो, मदरसा मज़ाहिर उलूम के नाम से हो या नौमानिया शीशागाछी के नाम से हो, ये जितने भी इदारे, ये जितने भी मदरसे दारुल उलूम किशनगंज के नाम से हो, ये सारे मदरसे जमीन के ऊपर जो खुले हुए हैं, ये यकीन जानिए कि आसमान पर चमकने वाले सितारों का वो मुकद्दर नहीं, जो मुकद्दर इन मदारिस का है, इन मकातिब का है, इन मदरसों का है, इन मस्जिदों का है, इन खानकाहों का है, इनका मुकद्दर आसमान पर चमकते हुए सितारों से ज्यादा बुलंद है। मेरे दोस्तों, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आई बात समझ में? तेरा मैकदा नहीं, ये मदरसा है, यहाँ खाक को कुंदन बनाया जाता है। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां अल्लाह के दीन की बात होती है, जहां कुरान की बात होती है, जहां हदीस की बात होती है, जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है, जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां कुरान की तालीम की जाती है, जहां कुरान समझाया जाता है, जहां कुरान की तिलावत की जाती है, जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता है, आपकी सुन्नतों पर अमल करने का तज़किरा होता है, जहां दीन की बात होती है, तबलीग की बात होती है, ऐसी जगहों पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और अल्लाह के नेक फरिश्ते, मासूम फरिश्ते ऐसी जगहों को अपने अपने मुबारक से, अपने मुहाफिज परों से चारों तरफ से घेर लेते हैं और कितार अंदर कितार आसमान तक उस जगह की हिफाजत होती है और उस जगह पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। चुनांचे हदीस में आता है, सहाबी रसूल रात की तारीकी में घर के अंदर बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, देखा आसमान की तरफ से एक बदली आ रही है, एक चमकदार सा घर नाजिल हो रहा है, एक चमक मालूम हो रही है। जब वो चमक करीब आ रही है और करीब आते आते इतने करीब उसकी रोशनी आ गई कि सहाबी रसूल के घर में जो घोड़ा बंधा हुआ था वो घोड़ा बिदकने लगा। सहाबी रसूल को लगा कि मेरा बच्चा जो करीब में सो रहा है कहीं उस बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए, तो आपने पढ़ना बंद कर दिया। उसके बाद वो रोशनी ऊपर चली गई। सुबह तज़किरा हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इस वाक़ये को पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह की खास रहमत थी जो तुम्हारे घर में नाज़िल हो रही थी कुरान पढ़ने की वजह से। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। इन मदरसों में क्या होता है? अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है। जब आप रात की तारीकी में सो रहे होते हैं, मुअज्जिन फज्र की अजान देता है, आपकी आंख नहीं खुलती। फज्र की नमाज में इमाम अकेला और दो लोगों के लेकर नमाज पढ़ रहा होता है, आपकी आंख नहीं खुलती। आप सर्दी की रातों में अपनी रजाई लेकर, अपना बिछौना लेकर, मोटे मोटे गद्दों पर अपने लिहाफ को लेकर सोए रहते हैं। शैतान के पंजे तले आपका बदन जकड़ा हुआ रहता है। आपको उठने की
तौफीक नहीं होती, उस वक्त मुअज्जिन की पुकार से पहले इन मदरसों के छोटे छोटे बच्चे, इन मदरसों की छोटी छोटी बच्चियां उस मुअज्जिन की अज़ान से पहले उठ जाती है और उठकर अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत शुरू कर देती है। ये दुनिया ऐसे ही कायम नहीं है, ये अल्लाह के इन्हीं जिक्र से कायम है, अल्लाह के इसी नाम से कायम है, अल्लाह के इसी कुरान से कायम है कौल खुदा, इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुनिया उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक दुनिया में कुरान बाकी है, कुरान की तालीम बाकी है, कुरान का पैगाम बाकी है। कुरान का पैगाम जब तक इस दुनिया को मिल रहा है, कुरान की रोशनी से ये दुनिया फैज़याब हो रही है, ये मदरसे खुल रहे हैं, ये मकातिब खुल रहे हैं, इन खानकाहों में कुरान का पैगाम सुनाया जा रहा है, तब तक ये दुनिया कायम है, ये धरती कायम है। यहाँ हुकूमतें भी चल रही हैं, आवाम को सहूलियात भी मिल रही है, हुकूमतें बन भी रही हैं और बिगड़ भी रही हैं, लेकिन तख्लीकी निजाम तो अल्लाह चलाने वाला है। हम सोचते हैं कि हुकूमत मोदी कर रहा है, हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो तो जाहिरी तौर पर है, नाम का प्रधानमंत्री है, लोगों ने इंतखाब किया, वोट दिया और बन गया। लेकिन ये दुनिया, ये कायनात, ये धरती, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये पहाड़, ये दरिया, ये सब किसने बनाए हैं? मोदी के अब्बा ने बनाया क्या? मोदी के अब्बा ने बनाया है। हिंदुस्तान की मिट्टी का एक जर्रा, हिंदुस्तान की जमीन का एक जर्रा किसी सरकार की, किसी प्रधानमंत्री की, किसी मिनिस्टर की मजाल नहीं है कि वो एक मिट्टी का जर्रा बना दे, वो घास का एक तिनका पैदा कर दे। हुकूमत तो किसी और की है, बादशाहत तो किसी और की है। बादशाहत किसकी है? बादशाहत मेरे उस खालिक की है, मेरे उस मालिक की है, मेरे उस परवरदिगार की है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने जमीन बनाई, जिसने आसमान बनाया, जिसने पहाड़ों को जमीन के ऊपर इस तरह से ठोक दिया कि ये जमीन रुकी हुई है, जिसने दरिया में पानी बहाया, जिसने इतनी लंबी चौड़ी कायनात बनाई, ताहत निगाह इतनी सारी नेमतें पैदा की, उस एक खालिक हकीकी मालिक जुल जलाल वल इकराम, उसकी बादशाहत है, उसकी हुकूमत है, वो अहकमुल हाकिमीन है, उसके अलावा किसी की हुकूमत नहीं। ये सब 4 दिन की कुर्सियों के मालिक हैं। मुसलमानों, तुम्हारा यकीन उस मालिक हकीकी पर है, तुम्हारा यकीन कुरान पर है, तुम्हारा यकीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमात पर है। तुम्हें मालूम है कि इस दुनिया का हकीकी मालिक मेरा रब है, हमें मालूम है कि इस दुनिया को चलाने वाला मेरा रब है, हमें मालूम है कि इस दुनिया में सूरज निकालने वाला मेरा परवरदिगार है, हमें मालूम है कि इस दुनिया में तारीकी लाने वाला, सुबह लाने वाला, शाम लाने वाला, रात करने वाला, दिन निकालने वाला, पानी निकालने वाला, आग की नेमत हमें अदा करने वाला, पहाड़ों को बनाने वाला, दरियाओं को बनाने वाला, जर्रात को बनाने वाला, तिनकों को बनाने वाला, घास को बनाने वाला, नबातात को बनाने वाला, जमादात को बनाने वाला, दरख्तों को बनाने वाला, अशजार को बनाने वाला, नहरों को बनाने वाला, दरख्तों को बनाने वाला, फूलों को बनाने वाला, फलों को बनाने वाला, हमें रोजी पहुंचाने वाला, गल्ला उगाने वाला, गेहूं बनाने वाला, चावल बनाने वाला, इन तमाम नेमतों का हकीकी मालिक सिर्फ और सिर्फ एक रब है और उसका नाम अल्लाह वाहिद है। यकीन है या नहीं? ये यकीन होना चाहिए और यही मुसलमान के लिए फख्र का जरिया है। इसलिए मुसलमान किसी हुकूमत की परवाह नहीं करता, मुसलमान किसी बादशाह, किसी प्रधानमंत्री की परवाह नहीं करता। उसे मालूम है कि हकीकी मालिक तो कोई और है, हम तो उसकी हुकूमत में जिंदा हैं, हमें तो उसकी बादशाहत काफी है हमारे लिए। मेरे दोस्तों, अगर चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस जमीन पर हमें इज्जत की जिंदगी मिले, अल्लाह की बनाई हुई इस धरती पर हम और आप चैन और सुकून का सांस ले सकें, अल्लाह की बनाई हुई इस धरती पर
ہم فخر و افتخار کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، تو پھر ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دھرتی کس کی ہے؟ یہ کائنات کس کی ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی صلاحیت، عقل و دانائی، کپڑے بنانے کی صلاحیت، کھانا بنانے کی صلاحیت، غلہ اگانے کی صلاحیت، کھیتی کرنے کی صلاحیت، زمین میں ہل جوت کر اس میں دانہ ڈال کر غلہ اگانے کی، مکئی اگانے کی، گیہوں اگانے کی اور دھان اگانے کی صلاحیت کس نے عطا کی؟ اللہ رب الجلال نے عطا کی، اللہ رب العزت نے عطا کی۔ تو بادشاہت اس اللہ کی ہے۔ مسلمان کو کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں آیا تو یہ کر دے گا، فلاں گیا تو یہ کر دے گا، فلاں کے جانے سے ہمارا نقصان ہے، فلاں کے آنے سے ہمارا فائدہ ہے۔ نہیں نہیں، مسلمانوں، قرآن ہمارے فائدے کی چیز ہے، اسلام ہمارے فائدے کی چیز ہے، ایمان ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ قرآن سے چمٹ جاؤ گے، قرآن کو تھام لو گے، قرآن کو سینوں میں بسا لو گے، قرآن پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے ہی نام کے چرچے ہوگے، تمہاری ہی حکومت و سلطنت ہوگی، بادشاہ بھی تم بنو گے، وزیر بھی تم بنو گے، حکومتوں کے تخت و تاج تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، پردھان منتری بھی تم بنو گے، وزیر اعلیٰ بھی تم بنو گے، وزیر اعظم بھی تم بنو گے، وزیر داخلہ بھی تم بنو گے، وزیر خارجہ بھی تم بنو گے۔ دنیا کی حکومت اور سلطنت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ شرط کیا ہے؟ کہ تمہیں مومن ہونا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہم میں سے ہر آدمی مومن ہے، ہم میں سے تو ہر آدمی مومن ہے، جس نے ٹوپی پہن رکھی وہ بھی مومن، جس نے نہیں پہن رکھی وہ بھی مومن، جو ہیلمٹ پہن کر بیٹھا تھا وہ بھی مومن، جو ٹوپا لگائے بیٹھا ہے وہ بھی مومن، جو چادر اوڑے بیٹھا ہے وہ بھی مومن۔ تو نام کا مومن ہونا تو بہت آسان ہے، گوشت کھانے والا مسلمان ہونا بہت آسان ہے۔ مسلمان ہے جی، کیوں ہے مسلمان؟ جی ہاتھ کے دن گوشت کھاتے ہیں، ہاتھ دن میں گوشت کھاتے کی، ہاتھ دن تو ہر دن میں گوشت کھاتے تو بھی مسلمان نہ کی، عجیب حال ہے۔ وہ گوشت کھانے سے مسلمان ہو جائے گا؟ دنیا میں بے شمار قومیں ایسی ہیں جو گوشت کھاتی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے مسلمان نام رکھ لینا اور گوشت کھا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ بتائیے، کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے کہ نام رکھ لیا محمد علی، نام رکھ لیا محمد عمر، نام رکھ لیا محمد عثمان؟ کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ نام رکھا ہے عمر فاروق اور کام کر رہا ہے نعوذ باللہ ابو جہل والے۔ نام ہے عمر فاروق، ابھی حضرت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو قصے سنائے اور ان کا جو واقعہ بتایا، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ عمر کا نام لینے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر کی شان تو یہ تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور آج کے وقت کا کوئی مسلمان جس کے بچے کا نام عمر ہے، کوئی ایسا ہمارا بھائی جس کا نام عمر ہے، وہ جس گلی میں چلنے لگے 100 شیطان اسی گلی میں چلنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شیطان کی ٹولی کو ساتھ لے کے پھر رہا ہے، شیطانوں کا گروپ لیے پھر رہا ہے۔ نہ ہماری خلوت اچھی، نہ ہماری جلوت اچھی، نہ ہماری صحبت اچھی، نہ ہماری ہم نشینی اچھی، نہ ہماری نشست و برخاست اچھی، کچھ بھی ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی پل، کوئی واقعہ، کوئی لمحہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ बैठो, सच्चों के साथ नशिस्त व बर्खास्त रखो, सच्चों के साथ जिंदगी गुजारो, तुम्हारी सोहबत तुम्हारी हमनशीनी, तुम जिन लोगों के साथ बैठते हो, तुम जिन लोगों के साथ बैठते उठते हो, तुम्हारा गुजर बसर जिन लोगों के साथ होता है वो सच्चे होने चाहिए, सच्चाई पर डटे रहने वाले होने चाहिए और उनके मुंह से झूठ बात ना निकलती हो। बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो सच्चों को अपना दोस्त बनाते हैं, जो सच्चों के साथ जिंदगी गुजारते हैं, बल्कि ये कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा सच्चा बन रहा है, लगता है कि इससे ज्यादा सच्चा कोई है ही नहीं, इससे दूर रहो। ये हमारी हालत है या नहीं बुजुर्गों? ए चिचाईला बात छला नहीं, सही बोलो ना नहीं, हाँ चला नहीं मानी कीचे हमारी जिंदगी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जितने मदरसे खुले हुए हैं, ये मदरसे हमारी बका का जरिया है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। खूब शोर मचाओ, तहफ़्फ़ुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस करो कि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, शरीयत बचाओ तहरीक चलाओ कि शरीयत पर हमला नहीं होना चाहिए। शरीयत पर लाख सरकार हमला कर ले, शरीयत को बचाने वाले आप ही लोग हैं। अगर आप चाहेंगे तो शरीयत महफूज रहेगी, आप नहीं चाहेंगे तो बताइए किसके घर में शरीयत महफूज है? हमने अपने घरों में शरीयत महफूज कर रखी है, हमारे घर का माहौल शरई है, हमारे घर का पर्दा शरई है, हमारे घर की तालीम शरई है, हमारे घर की खवातीन शरई लिहाज से जिंदगी गुजारती हैं। हर आदमी अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, अपने घर के अंदर झांक कर देख ले कि वो कितना शरीयत पर अमल कर रहा है। शरीयत की बका और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन अगर कोई है तो यही मदारिस इस्लामिया है, जिन मदरसों को आप आबाद कर रहे हैं, जिन मदरसों की आप बुनियाद रख रहे हैं, इन्हीं मदरसों से शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बच्चे और बच्चियां निकल रही हैं। मेरे दोस्त, आज जो हमारे सरों पर टोपियां नजर आ रही है, आज जो मैं आपको दो चार कुरान की बातें बता रहा हूँ, आज जो उलमाए किराम आपको दीन समझा रहे हैं, आज जो ये तबलीगी जमात का सिलसिला चला हुआ है, ये सब इन्हीं मदारिस इस्लामिया की बरकत है। मौलाना इलियास साहब कादलवी कौन थे? इसी मदरसे के प्रोडक्ट थे। सब कुछ मदरसे से, सारी दुनिया में फैज पहुंच रहा है मदरसे का। तो हमें अगर शरीयत को बाकी रखना है, अगर इस्लाम को बाकी रखना है, अगर ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इससे आगे बढ़कर मैं आपको बताऊं कि अगर हमें अपने वजूद की बका चाहिए, अगर हमें अपने तशख़्ख़ुस को बाकी रखना है, अगर हमें अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन को बाकी रखना है, तो इन मदारिस इस्लामिया को बाकी रखना होगा, इन मदारिस इस्लामिया को आबाद करना होगा, इन मदरसों की बुनियादों को मजबूत करना होगा, तब जाकर हमारी तमाम चीजें महफूज रह सकती हैं। अपने आप को मदरसों से जोड़ो, अपने आप को उलमाए किराम से जोड़ो, अपने आप को कुरान से जोड़ो। करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत से लोग होते हैं अतला मदरसा खुलेगा की करोगे, मदरसा वाला अतला मदरसा खुले की करोगे। मैंने आपको बताया कि आपको एक लाइट के रहते हुए दूसरी लाइट से जब दिक्कत नहीं है, एक सितारे के रहते हुए दूसरे सितारे से दिक्कत नहीं है, तो एक मदरसे के रहते हुए दूसरे मदरसे से क्या दिक्कत? आपको चाहिए कि आपकी बस्ती में एक मदरसे हो, दो हो, चार हो, तमाम आपके मदरसे हैं, और आप में से जितने मुसलमान उस बस्ती में रहते हैं, हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि वो उस मदरसे को अपना मदरसा समझकर उसको आबाद करने की कोशिश करे और उसमें अपने बच्चों को तालीम दिलाए, दीनी तालीम दिलाए। दिलाएंगे इंशाअल्लाह, हम सब अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। आज कितने अफसोस की बात है कि हमारे घर के अक्सर बच्चे वो कुरान की तालीम से, दीन की तालीम से नाबलद हैं, दूर हैं। स्कूल तो भेज रहे हैं, हमारा हाल तो यह है कि 10वीं क्लास तक मुश्किल से स्कूल भेजते हैं। बच्चा जैसे ही 10वीं पास करता है उसको कमाने के लिए दिल्ली पंजाब भेज देते हैं। ये हमारी सोच है, ये बहुत घटिया सोच है कि बच्चे को बस 8 क्लास 10 क्लास पढ़ाकर कमाने के लिए भेज दिया। अगर पढ़ाना है तो आला तालीम दिलाइए, उसको अफसर बनाने की कोशिश कीजिए। और अभी उलमाए किराम में बात हो रही थी,
हम अपने जिन बच्चों को एक किशनगंज के अंदर, अपने जिले के अंदर पढ़ाते हैं मदरसों के अंदर कि हमारा बच्चा हाफिज बन जाए, हमारा बच्चा आलिम बन जाए, उनको भी हम अपने इलाके में थोड़ा बहुत पढ़ाकर फिर बाहर भेज देते हैं। कहाँ पढ़ेगा? गुजरात के मदरसे में पढ़ेगा। कहाँ पढ़ेगा? तो पंजाब के मदरसे में पढ़ेगा। कहाँ पढ़ेगा? यूपी के मदरसों में पढ़ेगा। मेरे दोस्तों, आपके किशनगंज में बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मदरसे खुल गए हैं। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाइए, अपने जिले के अंदर अपने मदरसों में दिलाइए। हजरत मौलाना मुफ्ती इजहार साहब के मदरसे में दाखिला कराइए, मज़ाहिरुल उलूम पवा खाली में दाखिला कराइए, आपके गांव में कोई मदरसा है वहां पढ़ाइए, और मुकम्मल तालीम इंशाअल्लाह यही होगी आपके बच्चे की। बाहर भेजने से बच्चा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लेता है। आपके इलाके में ऐसे ऐसे मदरसे हैं, ऐसी ऐसी सलाहियत के मालिक उलमाए किराम हैं। ये हजरत मुफ्ती इजहार साहब, इनसे पहले मुफ्ती तौकीर साहब, इन लोगों ने दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाया है। दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद रह चुके हैं। इनसे बड़ा कोई उस्ताद आपको इलाके में मिलेगा? जब दारुल उलूम के उस्ताद आपके इलाके में आ चुके हैं तो आपको उनसे पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों। तो एक पैगाम तो मेरा ये है कि आप इन मदरसों में अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाइए। और हमारे बाज लोगों का ये बन गया है मिजाज कि एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे, एक को स्कूल में पढ़ाएंगे, एक को कहीं नहीं पढ़ाएंगे, चौथे को इंजीनियर बनाएंगे, पांचवे को डॉक्टर बनाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने तमाम बच्चों के लिए अलग अलग डिग्री सोच लीजिए कि इसको ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, लेकिन हर बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज का रहे यार, अपनी हकीकत को और अल्लाह को न भूलो। हम अपने एक बच्चे को, जिसको हम डॉक्टर बनाने की सोच रहे हैं, जिसको मास्टर बनाने की सोच रहे हैं, जिसको इंजीनियर बनाने की सोच रहे हैं, उसको भी पहले मदरसे में दाखिल कीजिए, उसको भी पहले मकतब में दाखिल कीजिए, उसको भी पहले कुरान की तालीम दीजिए, उसको भी पहले दीन की तालीम दीजिए, उसको भी पहले नमाजी बनाइए, तब जाकर डॉक्टर बनाइएगा। पहले बार आपका बच्चा नमाजी होगा, दीनदार होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, अल्लाह को जानने वाला होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ होगा, तब आप कुछ भी बना दीजिए उसको डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, प्रोफेसर बना दीजिए, साइंटिस्ट बना दीजिए, पायलट बना दीजिए। वो किसी भी मैदान में जाएगा, ईमान बेचकर नहीं खाएगा। मेरे दोस्त, आई मेरी बात समझ में? हम अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन सबसे बुनियादी तालीम उसकी दीनी तालीम होनी चाहिए। एक मौलाना साहब से, एक मदरसे से, एक मकतब से, एक मस्जिद से आपका एक एक बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल से ज्यादा अमल की तौफीक मोहम्मद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाबे मौलाना आफ्ताब अजहर साहब अपनी खूबसूरत बातों से हम सामने को नवाज रहे थे।